चालू करें? जी प्रभु जी जी। वंदे गुरुपाददंडं भक्तवृंद समन्वितं श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितं श्रीनंदनंदनं वंदे राधिका चरणद्वयं गोपीजन समयुक्तं वृंदावन मनोहरम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, प्रभु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, प्रभु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, प्रभु चरणन की। चरण बिना मोहे कुछ नहीं भावे, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे। जग माया सब सपनन की, जग माया सब सपनन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, प्रभु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, प्रभु चरणन की। भव सागर सब सूख गयो है, भव सागर सब सूख गयो है। फिकर नहीं मोहे चरणन की, फिकर नहीं मोहे चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, प्रभु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, प्रभु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। आस गई गुरु शरणन की, आस गई गुरु शरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, प्रभु चरणन की। ओ चरणन की, प्रभु चरणन की, चरणन की, प्रभु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, प्रभु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, प्रभु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर। गिरिधर नागर, गिरिधर नागर। आस गई गुरु चरणन की, आस गई गुरु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, प्रभु चरणन की। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, प्रभु चरणन की। बड़ा
সুখের খবর গাই বড় সুখের খবর গাই সুরভিকুঞ্জেতে নামে কাঠ তুলেছে কদনিকায় বড় সুখের খবর গাই বড় সুখের খবর গাই ডিস্টার্ব হচ্ছে তুমি ছেড়ে দাও খুব রসভঙ্গ হয়ে যায় বড় সুখের খবর গাই বড় সুখের খবর গাই সুরভিকুঞ্জেতে নামে কাঠ খুলেছে কদনিকায় বড় মজার কথা তাই বড় মজার কথা তাই শ্রদ্ধা মূল্যে শুদ্ধ নাম সে হাটেতে বিকায় শ্রদ্ধা মূল্যে শুদ্ধ নাম সে হাটেতে বিকায় বড় সুখের খবর গাই বড় সুখের খবর গাই যত ভক্ত বৃন্দ বসি যত ভক্ত বৃন্দ বসি অধিকারী দেখে না দিচ্ছে দ্বারকসি অধিকারী দেখে না দিচ্ছে দ্বারকসি যদি নাম কিনবে ভাই যদি নাম কিনবে ভাই আমার সঙ্গে চলো মা জানের কাছে যাই আমার সঙ্গে চলো মা জানের কাছে যাই সুখের খবর গাই বড় সুখের খবর গাই সুরভিকুঞ্জেতে নামে হাট খুলেছে কদনিকায় বড় মজার কথা তুমি কিনবে কৃষ্ণ নাম তুমি কিনবে কৃষ্ণ নাম দাস করিলাইব আমি পূর্ণ হবে কাম দাস করিলাইব আমি পূর্ণ হবে কাম বড় দয়াল নিত্যানন্দ বড় দয়াল নিত্যানন্দ শ্রদ্ধা মাত্র লয়ে দেন পরময়ানন্দ শ্রদ্ধা মাত্র লয়ে দেন পরময়ানন্দ বড় সুখের খবর গাই বড় সুখের খবর গাই সুরভিকুঞ্জেতে নামে হাট খুলেছে কদনিকায় বড় সুখের খবর গাই
একবার দেখলে চোখে জাল, একবার দেখলে চোখে জাল, গৌর বলে নিতাই দেন সকল সম্বল, গৌর বলে নিতাই দেন সকল সম্বল, দেন শুদ্ধ কৃষ্ণ শিক্ষা, দেন শুদ্ধ কৃষ্ণ শিক্ষা, জাতি দান বিদ্যা বল না করে অপেক্ষা, জাতি দান বিদ্যা বল না করে অপেক্ষা, অমনি ছাড়ে মায়া জাল, অমনি ছাড়ে মায়া জাল, প্রিয়ে থাকো বনে থাকো না চাকে জঞ্জাল, প্রিয়ে থাকো বনে থাকো না থাকে জঞ্জাল, সুখের খবর গাই বড় সুখের খবর গাই, সুরভি কুঞ্জতে নামে আট তুলেছে খোদ নিতা, বড় সুখের খবর গাই, আর নাইকো কলির ভয়, আর নাইকো কলির ভয়, আচণ্ডালে দেন না নিতাই দয়াময়, আচণ্ডালে দেন না নিতাই দয়াময়, ঠাকুর ভক্তি বিনোদ ডাকি কায়, ভক্তি বিনোদ ডাকি কায়, হিতায় চাঁদের চরণ বিনা আর নাই আশা, হিতায় চাঁদের চরণ বিনা আর নাই আশা, বড় সুখের খবর গাই, বড় সুখের খবর গাই, সুরভি কুঞ্জতে নামে আট তুলেছে খোদ নিতা, বড় মজার কথা তাই, বড় মজার কথা তাই, শুদ্ধ ভক্ত চরণ রেণু অজনয়ন, শুদ্ধ ভক্ত চরণ রেণু অজনয়ন, ভগত সেবা পরমা সিদ্ধি প্রেম লতিকার মূল, শুদ্ধ ভক্ত চরণ রেণু অজনয়ন, ভগত সেবা পরমা সিদ্ধি প্রেম লতিকার মূল, শুদ্ধ
प्रीति भक्ति जननी जतने पालन कोरी माधवती भक्ति जननी जतने पालन कोरी कृष्ण वसती वसती बोली परमया धरि गोरी सुत भक्त चरण रेणु भजन भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम सिद्धानु सुत भक्त चरण रेणु भजन गौरया मार्ग सब स्थान ढोल भ्रमण रंगे गौरया मार्ग सब स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरवयामि प्रणयी भगत संगे शुद्ध भक्त परम रेणु भजनयन शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयन मृदंगवाद्य सुनिते मन अवसर सदा जाते मृदंगवाद्य सुनिते मन अवसर सदा जाते गौरवीत कीर्तन सुनी अनंतरी नाचे गौरवीत कीर्तन सुनी अनंतरी नाचे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजनयन युगल मूर्ति देखिया मोर परमयानंद युगल मूर्ति देखिया मोर परमयानंद प्रसाद सेवा करिते हाय सकल प्रपंच शुद्ध भक्त चरण रेणु भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम सिद्धानु शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन যেদিন নবীয়ে ভজন দেখি প্রিয়তে গোলক ভাই যেদিন নবীয়ে ভজন দেখি প্রিয়তে গোলক ভাই চরণ সিধু দেখিয়া গঙ্গা সুখ নসীমা পায় चरण सिधु देखिया गंगा सुख नसीमा पाय तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव को सखी जानी तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव को सखी जानी गौर प्रिया साधु से बनी जीवन सार्थक मानी शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन भक्त सेवा परमा सिद्धि प्रेम सिद्धानु शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाइजा भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाइजा प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार करोइता शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन सेवा
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद धन्यवाद प्रियव्रत प्रभु जी, बहुत बहुत दंडवत प्रणाम प्रभु जी। ऋषि को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, हरे धन्यवाद कृष्णा हरे कृष्णा। ऋषि प्रभु, प्रभु जी, माइक धन्यवाद। आपको समर्पित है। आप जी दंडवत जी प्रणाम। जी। हरे कृष्ण। बलिए गिरिराज महाराज की जय। गुरवी गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्त्याय नमो नमो विष्णुपादाय श्रीकेशव प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत वामनईति नामिने नमो विष्णुपादाय आचार्य सिंहरूपिणे श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशवईति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैरागमूर्ते विप्रलम्बर शाम्भोदे पादाम्बुजयति नमः नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भूमिष्ठं निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये महाम्भोधस्तिरे कनकरुचिरनीलशिखरी वसन्प्रासदन्त सहज बलभद्रे नवलिना सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा अवसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे हन्ताय मद्रबला हरिदास वर्यो यत राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदो मानं तनति सहो गोगनयस्तयोर्यत् पानीय सुजव सकंदर कंदमूले गोवर्धन जयति शैलकुलाधिरायो यो गोपिकाभिरुचितो हरिदास वर्जो कृष्णेन शक्रमक भंग कितार्चित सप्तहमश्य करपद्मतले अवाप्सि सप्ताहमेवाच्युत हस्तपंकज भिंगायमानं फलमूलकंदरे संक्षेपमानं हरिमात्मिन गोवर्धनार्दिं शिरसं नमामि वृंदायै तुलसी वै प्रियायै केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्तवत्तै नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवरदि गौर भक्त वृंद बलि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि हरि बोल
सर्वाग्र गुरुपाद पद्म जगत गुरु नितला विष्णु विष्णुपाद अष्टो शतस्य। श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरण कमल में ये दास अधम का साष्टांग दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात मदीय शिक्षा गुरुपाद पद्म परम पूजनीय परम वंदनीय श्री गोवर्धन दास बाबा जी महाराज जी के चरण कमलों में ये दास अधम का दंडवत प्रणाम। क्षमागतो भक्तबिंद क्षमागतो मातृबिंद, आप सभी के चरणों में ये दास अधम का यथा युग दंडवत प्रणाम। आज परम पवित्र तिथि है, एकादशी तिथि, माधव तिथि। भक्ति जननी जतने पालन करी, भक्तिनाथ ठाकुर ने कीर्तन किए। ये भक्ति की जननी है, माधव साक्षात भगवान ही है। ये तिथि पालन करने से भक्ति तो होती है और भक्ति के द्वारा भगवान को भी प्राप्त किया जाता है। ये तिथि किस प्रकार पालन किया जाते हैं? ये तिथि आज के दिन उपवास, उप होता है निकट, वास होता है रहना। आज पूरे दिन भगवान के निकट ही वास करना चाहिए, रहना चाहिए, तभी एकादशी परिपूर्ण हो जाए। तो भगवान के निकट में हम किस प्रकार रहेंगे? शास्त्र कहते हैं श्रवण कीर्तन स्मरण द्वारा के द्वारा ही भगवान के निकट हम वास करेंगे। तो आज विशेष करके पूरे दिन भगवान का, पूरे दिन रात भगवान का नाम कीर्तन श्रवण कीर्तन करना चाहिए। तो आज हम लोग पहले भागवत कथा श्रवण करेंगे। भागवत कथा श्रवण करने के बाद एकादशी की महात्मा जो है हम लोग श्रवण करेंगे। चतुर्थ स्कंदों में पुरंजन पुरंजनी की कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं। और पुरंजन पुरंजनी की कथा जो है देवर्षि नारद प्राचीन बरही महाराज जी से कह रहे। देवर्षि नारद वही कह रहे हैं। और देखते 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 ये मृत्यु का सैनिक जो है ना, मृत्यु का सैनिक आकर के पुरंजन का पुरी जो है, नगर जो है, उन नगरों को उन्होंने घेर ले लिया चारों ओरों से। ये सैनिक क्या है? कल हम लोगों ने संक्षेप पूर्वक श्रवण किए। देखिए, ये मृत्यु का सैनिक जो है ना, मृत्यु के भय से हमेशा ही मृत्यु का आदेश पालन कर रहे हैं, क्योंकि उनका राजा है। राजा का जो आदेश है, आदेश पालन करना सैनिकों का ये परम कर्तव्य है। ये जरा जो है और प्रजर जो है, ये दोनों ही मृत्यु का प्रधान सेना है। और ये दोनों सेना मृत्यु का आदेश के अनुसार ये काम कर रहे हैं। और दोनों ही पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। कहां जाकर के, किसको जाकर के आक्रमण करना है, किसके सिर पर जाकर के बैठना है, ये हमेशा ही यही कर्म करते हैं। तो ऐसे घूमते घूमते तो एकदा तु रभसा पुरंजन पुरीम नृप। हे महाराज, नृप होता है प्राचीन बरी महाराज। तो एकदा ते एकदा, ये दोनों ही रभसा, रभसा होता है अत्यंत द्रुत गति से पुरंजन की नगरी जो है और उनके नगर में जाकर के प्रवेश किया। कौन? ये जरा और प्रजर दोनों बड़ी बेग से पुरंजन के पुरी में जाकर के प्रवेश किया। और पुरंजन का नगर में जो रक्षक है, वो रक्षक भी अभी धीरे 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 अब बुढ़ा बन गए। ये रक्षक कौन है? इन नगर में, इन शरीर में जो रक्षा करने वाला है, वो 5 सिर वाले सांप है।
और ये 5 सिर वाले सांप क्या है? पंचो प्राण ही 5 सिर वाले सांप हैं। और धीरे 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 प्राण भी बूढ़े बन गए। देखिए, प्राण अलग है, आत्मा अलग है, जीवात्मा तो अलग है। ये प्राण, पंचो प्राण जो है, ये पंचो प्राण, ये वायु ही है। और जब बुढ़ापा हो जाता है ना, उनका वायु भी ठीक से, श्वास भी ठीक से नहीं चलते, अर्थात उनका पंचो प्राण धीरे धीरे बुढ़ा बन गए। और ये काल कन्या जो है, ये प्रचंड व्यक्ति जो कन्या जो है ना, जरा जो है पुरंजन के ऊपर जाकर के बैठ गया, एकदम जबरदस्त करके। कोई नहीं चाहता है जरा को, ना चाहने होते हुए भी जरा ने जाकर के बलपूर्वक उनके सिर के ऊपर बैठ गए। और ये जवन महाराज का ये मृत्यु का सेना जो है ना, चारों ओर पुरी को घेर करके, पुरी में अपने अंदर जाकर के उन नगर को, पुरी को एकदम नष्ट भ्रष्ट करने लगे। महाराज क्या कहे, ये देख करके पुरंजन का हृदय अत्यंत जल रहा है। दुख के कारण महान क्लेश हुआ। इन क्लेश के समय, दुख के समय परिवार में तो अनेक लोग हैं, बेटा है, उनका भी पुत्र है, पौत्र है, पत्नी है, और भी रिश्तेदार है। इस समय कोई आगे नहीं आए, और आगे आकर भी उनका कोई सहायता किया नहीं। पुरंजन महाराज देख रहा है, ये महान क्लेश में, महान दुख में संसार से कोई नहीं आ रहे, क्या करे? वो देखते देखते अत्यंत दुखी बन जाता है महाराज। पर जब कोई सहायता नहीं करता है ना, तो वो पांचाल देश जो है ना, एकदम उन सैनिकों के हाथ में पूरा पूरा चला जाता है, क्योंकि उनके पास लड़ने का कोई है नहीं। आप क्या करें? और जब पूरा ही देश, पंचाल देश आक्रांत हो गया, पुरंजन महाराज जो है अब मन में चिंतन कर रहा है, मुझे इस पुरी को त्याग करना ही ठीक है, पुरी में रहने का कोई जरूरत नहीं है। ये अवस्था सबके जीवन में एक दिन न एक दिन आएंगे। देखिए, उस दिन सबको ही शरीर छोड़ने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे, शरीर त्यागने के लिए आप तैयार बन जाएंगे। किस दिन? जिस दिन अनेक प्रकारों के व्याधि से, बीमार से, वार्धक्य समय में आपको घेर लेंगे, आपका शरीर नहीं चलेंगे, आप चल नहीं पाएंगे। उस समय दुख से, कष्टों से आपके मन में बार बार होंगे, शरीर को मैं छोड़ दूं। अब पुरंजन महाराज को भी यही हाल हो रहा है। चारों ओरों से ये सेनाओं ने जिस प्रकार अत्याचार करना शुरू किया है, ये आधी व्याधि जो कुछ भी बीमार है, अब पुरंजन महाराज को मन में यही चिंतन कर रहा है। क्या चिंतन करना है? राज्य छोड़ना ही मुझे ठीक है। इच्छा करने पर भी छोड़ नहीं पा रहा है। इस प्रकार आसक्ति है संसार के ऊपर। अपने को बचाने के लिए प्रयास तो करता है, कोई प्रयास उस समय सफल नहीं होता है महाराज। ऐसे देखते देखते ये प्रज्वर जो है ना, एकदम अंदर चला जाता है, पुरी के अंदर। और पुरी के अंदर में चला जाकर के क्या करते हैं, चारों ओर वो आग लगा देता है पुरी में। देखिए, ये आग क्या है? ये आग और क्या है नहीं है, मृत्यु के समय बीमार तो कोई ना कोई बीमार तो होना ही चाहिए, ये तो उपलक्ष्य है। और विशेष करके स्वाभाविक से जो इस संसार को छोड़ते हैं ना, बुढ़ापा होकर के, वार्धक्य होकर के, तो उनके शरीर में प्राण चले जाते समय
उनके शरीर में अत्यंत प्रचंड जो ताप जो है ना, शरीर गर्म हो जाता है। ये गर्म ही क्या है? ये प्रजर है, एक प्रकार मृत्यु रूपी जर है, और जर ही ये शरीर में आग लग गया। और जैसे पुरंजन के शरीर में आग लग गया ना, और पुरंजन अत्यंत व्याकुल हो उठा, चित्कार करते हैं जोर जोर से, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। पुत्रों की ओर देख करके, पौत्रों की ओर देख करके, स्त्री को देख करके कोई नहीं आते हैं। न आने पर भी उन सबका चिंतन करते हैं, वो कैसे रहेंगे, वो किस प्रकार घर में रहेंगे। पुरंजन इसी प्रकार सोचने लगते हैं, मेरे न रहने के कारण ये मेरी स्त्री जो है किस प्रकार संसार का जो दायित्व जो है, संसार का दायित्व का पालन करेंगे। ऐसी स्त्री कभी मिलती नहीं है। पतिव्रता साध्वी स्त्री जो है, पति की गुण, पति की रूप स्मरण कर रहा है, और मृत्यु के समय देखिए दुर्भागा जीव किस प्रकार पतन हो जाते हैं। मृत्यु के समय कम से कम तो भगवान का नाम करो, मृत्यु के समय कम से कम तो भगवान का स्मरण करो। इतने कुछ करने के बाद भी इस प्रकार दुर्भागा जीव भगवान का नाम स्मरण नहीं कर पाते, क्योंकि उनका संस्कार ऐसा है नहीं है, उनका अभ्यास ऐसा है नहीं है, साधन ऐसा है नहीं है। जो अभ्यास ना रहने के कारण, जो साधन ना रहने के कारण मृत्यु के समय केवल संसार का ही चिंतन आ रहे। ऐसी स्त्री में कहां पाऊंगा। इसी प्रकार सोचते सोचते अब क्या करें महाराज, पुरी में तो, नगर में तो चारों ओर तो आग लगा ही दिया है, और आग लगते ही वो प्राण जो है ना, पंचो प्राण जो है, सबसे पहले पंचो प्राण शरीर को छोड़कर भागते हैं। इस प्रकार सेना को देख करके, मृत्यु के सैनिक को देख करके जब प्राण सबसे पहले चले जाते हैं ना, तो आत्मा भी क्या होता है, आत्मा भी उसमें नहीं रह पाता, क्योंकि प्राण चले जाने के बाद ये शरीर विनाश हो ही जाता है, शरीर नष्ट हो ही जाता है। और उसी समय ये मृत्यु जो है, राजा जो है, राजा जाकर के पुरी में प्रवेश करता है, और पुरी में प्रवेश करके वो पुरंजन जो है, उन पुरंजन को बंदी बना करके अपना पुरी जो है, अपना नगर की ओर ले जाते हैं। मृत्यु का नगर कहाँ है, मृत्यु का निवास कहाँ है? जमपुरी है। जमपुरी की ओर उनको ले जाने लगे। इस प्रकार मृत्यु होने के बाद जब जमपुरी पहुंचते हैं पुरंजन, जमपुरी पहुंचते ही पुरंजन का हाल खराब हो जाता है। देखिए अनेक दिन से ऐसे जीव जंतु जो है पुरंजन के लिए अपेक्षा कर रहा है, कब पुरंजन महाराज हमारे पास आएंगे। देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्राचीन बरही महाराज, तुम जिस प्रकार कर्मकांडीय यज्ञों में, हवनों में तुम जिस प्रकार पशुओं को बलिदान किया, जिस प्रकार प्राणियों को तुमने वध किया है, उसी प्रकार प्राणी को भी पुरंजन महाराज ने बलि दे करके, वध करके हवन किया था, यज्ञ किया था। ये सारे प्राणी जमलोक में सब खड़े हुए हैं, और जैसे महाराज जमपुरी चले गए, और उसी समय कुठार सिधु क्रुध्या स्मरण तो अमीवश्य तत्। देखिए कुठार जैसे है ना, इसी प्रकार अस्त्रों से, शस्त्रों से ये सभी जीव जंतु जो है पुरंजन का शरीर को छेदन कर रहा है। छेदन करके टुकड़े टुकड़े करके सब वो जीव जंतु उसी को खा रहे, और पुरंजन को ये देख करके अत्यंत कष्ट होता है। देवर्षिनाथ यही कहता है, इसी संसार में जो व्यक्ति हिंसा युक्त कर्म करेंगे, एक दिन ना एक दिन उनके लिए हिंसा होगा ही होगा। इस जन्म में हो, पर जन्म में हो, कहीं पर जाकर सब
आपको भोगना पड़ेगा। इस कर्मों से कोई छूट नहीं पाएंगे। आप जिस प्रकार कर्म करेंगे आपको इसी प्रकार कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। ये संसार का नियम है, ये भगवान का नियम है। इस नियम को कोई बदल नहीं कर पाएंगे, इन नियम को कोई अस्वीकार नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार पुरंजन महाराज नरक में जाकर के 100 करोड़ों वर्ष उन्होंने नरक भोग करते हैं, और नरक भोगने के बाद उन्होंने जीवन में पुण्य कर्म भी किए, जीवन में अनेक दान धन भी किए, और उन पुण्य कर्म को फल भोगने के लिए विदर्भ के घर में जाकर के, विदर्भ नामक एक राजा है, क्योंकि राजघर में राजपुत्र होकर के, राजपुत्री होकर के वही जन्म लेता है कौन? जिनके पूर्व जन्मों में अनेक प्रकार पुण्य हैं। उस पुण्य को भोगने के लिए बड़े बड़े घर में जाकर के, संस्कार जैसे भोगी लोग है, धन संपत्ति प्रचुर है, उनके घर में जाकर के जन्म लेकर के इस प्रकार कर्म को फल भोगते हैं। और ये पुरंजन अपना जमपुरी में, जम के पास जाकर के पाप कर्म भोगने के बाद अब पुण्यों को भोगने के लिए विदर्भ महाराज जो है उनके घर में कन्या के रूप में प्रकट हुए हैं। देखिए, पहले तो था राजा पुरुष पुरंजन, अब हो गए कन्या। विदर्भ के कन्या होने के कारण इनका नाम हुआ है वैदर्भी। गीता में स्पष्ट है, यं यं वापि स्मरन् भावम तदत्यन्ते कलेवरम त्वं तमेवैति कौन्तेय तद भाव भावित। मृत्यु के समय जीव जो भावना चिंता करते हैं, मृत्यु के बाद उनको वही जाना पड़ता है, इसके लिए कोई संशय नहीं है। आप मृत्यु के समय जिसका चिंतन करेंगे, आपकी आसक्ति जहां रहेगी, मृत्यु के बाद आपको वही जाना पड़ेगा, ऐसा ही शरीर धारण करना पड़ेगा महाराज। पहले तो था पुरुष, पत्नी की चिंता करते करते पत्नी ही बनी, स्त्री बनी। अगर मृत्यु के समय घर में कुत्ते हैं, कुत्ते के लेकर हम रहते थे, कुत्ते को खिलाते, कुत्ते को पिलाते, कुत्ता छोड़कर हम नहीं सोते, और कुत्ता का चिंतन करते करते आप मानव है, आपको भी कुत्ता बनना पड़ेगा। इसलिए सावधान मृत्यु के समय। इसलिए पहले पहले ऋषि लोग जो है, मुनि लोग जो है, बड़े बड़े भक्तों जो है ना, मृत्यु से पहले संसार को छोड़कर के वन में चले जाते, क्योंकि कहीं पर मन जाकर के आसक्ति ना हो जाए। मृत्यु के समय कम से कम वन में जाकर के हरि का तो चिंतन करे, और हरि का चिंतन करते करते किसी का मृत्यु हो जाए तो हरि के पास ही चले जाते हैं, फिर दोबारा संसार में नहीं लौटते हैं। और मृत्यु के समय आप कैसा भी भजन करो, कैसा भी साधन करो, अगर मृत्यु के समय संसार की, परिवार की, पुत्रों की, धन संपत्ति की, किसी जीव जंतु का ऊपर आसक्ति हो जाए, मृत्यु के बाद आपको वही आना पड़ेगा। तो पुरंजन का नाम अब हुआ वैदर्भी, महाराज की कन्या। महाराज जी ने जब समय हुआ, समय होने के बाद कन्या के लिए स्वयंवर किया, और उसी स्वयंवर में मलयाध्यक्ष नामक एक राजा है, राजा आकर के सबको पराजय करके मलयाध्यक्ष उनको विवाह किया। विवाह करके अपने पुरी ले जाते हैं, नगर में ले जाते हैं। नगर ले जाने के बाद सांसारिक जीवन पालन कर रहे हैं, और पालन करते करते वैदर्भी जो है, मलयाध्यक्ष महाराज जो है, 7 पुत्र हुए और एक पुत्री। देखिए, ये मलयाध्यक्ष जो है ना, ये भगवान का परम भक्त है, और ये 7 पुत्र जो है, श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन वंदन, ऐसे नवविध भक्तियों में 7 भक्ति अंगों, ये 7 पुत्र हुए। और पुत्री जो है
ये मति जो है, जो रति जो है, वही प्रकट हुए हैं। क्योंकि सत्संगों के द्वारा, भक्तों के द्वारा भक्ति ही प्रकट होती है, भक्तों ही प्रकट होता है। इस प्रकार 7 पुत्रों 1 पुत्री उन्होंने जन्म दिए और 7 पुत्रों को भी उन्होंने उनके देश में अलग अलग भाग करके 7 पुत्रों को उन्होंने राजा बना दिया और प्रत्येक को विवाह दिए और प्रत्येक से भी पुत्र संतान उत्पन्न हुए और पुत्री को भी विवाह दिए और पुत्री से भी पुत्र होता है। ये सब कोई है नहीं है, सब अपना शरीर में जो है, जो कुछ तत्व जो है, आध्यात्मिक जगत का तत्व जो है, इसी तत्व को देवर्षि नारद एक उपमा के छल से ये वर्णन कर रहा है। ऐसे करते करते महाराज जब बुढ़ापा हुए ना, ये मलयध्वज महाराज, अब बेटा के ऊपर राज्यों का भार सौंप करके अब बन चले जाएंगे भगवान के भजन के लिए। और सब राजाओं पुत्रों को बुलाया, सबसे बड़ा पुत्र जो है उनको राज सिंहासन दिया। राज सिंहासन देने के बाद मलयध्वज महाराज एकदम भगवान के भजन करने के लिए सीधे बन चले जाते हैं और उनके पीछे उनकी रानी जो है ना वैदर्भी भी चली गई। जहां तप करने के लिए गए वहां एक नदी है, पवित्र नदी, उन नदी में नहा करके स्नान करके मन को, चित्त को उन्होंने निर्मल किया। नदी में नहाने के बाद चित्त जो है निर्मल हो गया और उसी वन में जो नियम है तप करने का, साधन करने का, उस नियम के अनुसार ये मलयध्वज राजा जो है खूब करके तप कर रहे हैं, कंदमूल फल मूल खा करके कठोर तपस्या जो है, कठोर तप करने लगे। मलयध्वज महाराज ने गर्मी में गर्मी, शीत में शीत, भूख प्यास है, सब उन्होंने सबको जय करके एक पेड़, एक अंगुली के ऊपर खड़े होकर के, एक पैर भी नहीं है और एक पैरों में एक अंगुली जो है उनमें खड़े होकर के भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया और जिस मंत्र को जप के उस मंत्र को उन्होंने सिद्धि किया। मंत्र सिद्धि हो जाने पर, उनका साधन भजन सिद्ध होने पर उनका चित्त, उनका मन एकदम स्थिर हुआ है, भगवान को छोड़ करके और कहीं नहीं जा रहा है। जब सिद्ध हो जाएंगे मंत्र, केवल भगवान का ही चिंतन, केवल भगवान का ही स्मरण और संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, संसार में कौन है या कौन नहीं है, आप महाराज जी के मन में ऐसा कोई चिंता नहीं, दिन रात केवल भगवान का चिंतन, भगवान छोड़कर कुछ जानते नहीं। इस प्रकार जब चिंतन किए कुछ दिनों में ही अपना शरीर को छोड़ करके भगवत धाम चले गए। अब शरीर छोड़ने के बाद महाराज जी के पास में जो वैदर्भी है, पत्नी जो है, पतिव्रता स्त्री, अब पति को प्राणहीन देख करके अत्यंत विलाप करने लगी। वैदर्भी, हे महाराज आप कहां चले गए, आप तो उठो, आपके बिना हम कैसे रहेंगे, आपके बिना हम कैसे जिएंगे। इस प्रकार विलाप करते करते पत्नी जो है पति के लिए वो चिता सजाता है, जिस चिता में अग्नि का संस्कार करेंगे। चिता सजा करके पति का शरीर वहां रख करके पति का शरीर को परिक्रमा करते हैं, प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके परिक्रमा करके जैसे ही उस चिता में जाकर के सती हो जाएगी, उसी समय उनका पुराना एक मित्र जो है, प्राचीन मित्र जो है, मित्र आकर के कहने लगा, अरे रुको 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 रुको, इन मित्र का नाम
एक ही नाम है अभिज्ञात। मधुर वाणी से मित्रों ने यही बोला। क्या बोला? क्वा त्वं कश्यासि को वा ययम् सयानो यस्य शोचसि यानासि किं सखायं मे येनाग्रे विचचार है। हाँ, कहने लगे त्वम क्वा अशी, का अशी, तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है, और कश्या अशी, तुम किसकी पुत्री हो, और अयम सयाने यश्य शोचसी, बा अथवा ये सोए हुए जो पुरुष जो है तुम्हारे पास में, ये पुरुष कौन है, और जिस पुरुष के लिए तुम शोचसी, शोचसी अर्थात तुम शोक कर रहे हो, वो पुरुष कौन है, तुम किसके लिए शोक कर रहे हो। अरे मुझे तुम नहीं पहचान रहे हो, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारा सखा हूं, क्या मुझे तुम भूल गए। वो सखा अपना परिचय दे रहा है, पर वो वैदर्भी कहती है आप कहां से आए हुए हैं, आपको को तो मैं नहीं जानता हूं, आपका परिचय क्या है। परिचय देने पर भी वो पहचान नहीं रहा है, क्योंकि अनादि काल से मित्रों का संग छोड़ने के कारण, मित्रों के साथ छोड़ने के कारण, अब मित्र सामने आने पर भी, मित्रों को देखकर भी हम नहीं पहचान पा रहे। ये मित्र कौन है? ये मित्र और कोई है नहीं है, ये परमात्मा रूपी भगवान ही है। जिस समय सत्संग होता है, सत्संगों के द्वारा भगवान का भजन, भगवान का साधन, भक्ति रूपी भक्ति जब उत्पन्न होती है, तब भगवान ज्यादा दूर में नहीं रहता है। ये मलयध्वज राजा जो है, ये भगवान का परम भक्त है, ये भगवान का परम सेवक है, और जीवन भर ये वैदर्भी ने क्या किया है, भक्तों पति का सेवन किया, और जिन पति को सेवन करके भक्ति रूपी फल को ही प्राप्त किए हैं, पुत्रों के रूप में, पुत्री के रूप में, और ऐसे जीवों का अंत में भगवान प्राप्ति ही उनके लिए अवश्यंभावी है। जीवन में सत्संग हुआ, ऐसे सतपति का सेवा किया, तब परमात्मा आकर के अपना परिचय दे। अरे तुम्हारे साथ मैं तो कितने दिन, वो मान सरोवर जो है ना, मान सरोवरों में हम दोनों ने विहार किया। बस देखो एक कारण है, वो कारण क्या है, तुम वहां से चले आने का कारण क्या है, वो कारण भगवान कहते हैं। देखो तुम एक समय क्या किए, मुझे छोड़ करके, उन मान सरोवरों में मुझे छोड़ करके तुम विषय भोगने के लिए तुमने क्या किया है, एक नगर को तुमने खोजा, और जिन नगर में तुमने प्रवेश किया अकेले नहीं है, एक स्त्री के साथ, और जिस दिन तुमने स्त्री के साथ उसी नगर में प्रवेश किया, उसी दिन से तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया। जो भी ज्ञान था, मेरे साथ तुम्हारा जो संबंध है, वो सारा ज्ञान तुम्हें नष्ट हुआ है, केवल केवल स्त्री का संग करने से। स्त्री कौन है? असत रूपी बुद्धि की संग करने से तुम्हारा ये दुर्दशा हुई। ना तो तुम इन महाराज की स्त्री है, ना तो तुम पहले पुरंजन था, और ना तो तुम्हारा ये पति है,
और ना तो पुरंजनी तुम्हारी पत्नी थी, ये तुम कुछ नहीं हो, तुम तो मेरे परम मित्र हो, मित्र। इस प्रकार भगवान आकर के परिचय देते हैं। और तुम जिस पुरी में तुम प्रवेश करते हो ना, उन पुरी में 9 दरवाजे हैं, और जिन 9 दरवाजे के नगर में तुम घूम करके प्रवेश करके तुम्हारा ये हाल हुआ है। न त्वम विदर्भ दुहिता नायम वीर सुहृत तब, न पतिस्तम पुरंजन्या रुद्ध नवो मुखे यया। देखिए भगवान क्या कहे, त्वम विदर्भो दुहितान न। ये विदर्भो जो है ना, विदर्भ महाराष्ट्र का दुहित्री, दुहित्री होता है कन्या, तुम उनके कन्या नहीं हो। अयम वीरा त्वव पति ही, ये वीर जो सोए हुए है, इन वीरों का तुम पत्नी नहीं हो, और ये वीर भी तुम्हारा पति नहीं है। यया नवो मुखे रुद्धा। देखिए जिस दिन, ये हमारा कोई है नहीं है, पर हमारे मन में इस प्रकार जो भावना जो है, चिंतन जो है, संसार के प्रति आसक्ति जो है, ये होने का कारण क्या है? वो मित्र रूपी परमात्मा उपदेश दे रहे हैं, जया नवो मुखे रुद्धा। जया, जिस दिन तुम ये 9 द्वार वाले पुरी में, नगर में जाकर के तुमने जाकर के आबद्ध हुए, जाकर के बैठ गया। संसार के प्रति जिस दिन तुम्हारा आसक्ति हुआ भोगने के लिए, उसी दिन से पुरंजन्या पति त्वम न, उसी दिन से तुम्हारा यह हाल हुआ। और त्वम पुरंजन्या पति न, और तुम भी पुरंजन की पत्नी पति नहीं था। ये वास्तव में क्या है? ये वास्तव में माया ही है, ये अज्ञान ही है। चलो मेरे साथ, हम पहले जहां था वही चले जाएंगे, मान सरोवरों में, और मान सरोवरों में जाकर के हम दोनों पूर्ववत हम विहार करेंगे, हम पूर्ववत हम वही रह करके आनंदों को उपभोग करेंगे। ये कथा जो है ना, ये प्राचीन बरही महाराज जी को देवर्षि नारद कह रहे, वास्तव में यही हाल हुए है। हम भगवान को जिस दिन से भूले हैं, और भगवान को भूलने के बाद माया के पास हम फंस गए, अविद्या के साथ बंधन हुए हैं, और अविद्या के साथ बंधन होने के कारण अपना परिचय हम नहीं जान रहे। जिस दिन साधु संग हो जाएंगे, साधु संग होने के बाद जिस दिन आत्मा का परिचय हम जान जाएंगे, उस दिन परमात्मा आकर के हमको इसी प्रकार उपदेश प्रदान करेंगे। इस प्रकार जब कहा, तब उनको समझ में आया। जब परमात्मा ने इस प्रकार समझाया, भगवान ने, अभिज्ञात बंधु ने जब इस प्रकार समझाया, तब उनको समझ में आया, हाँ वास्तव में ये संसार एक प्रकार माया है। तब दोनों मिल जाते हैं। देखिए दोनों मित्र है, एक जगह में बैठे हुए हैं, कहा? हृदय के भीतर। पुराण उपनिषद में है, द्वा सुपर्णा सजुजा सखाया समाने वृक्षे, समाने वृक्षे, वृक्ष जो है समान स्थान में बैठे हुए हैं। किस अवस्था में? एक दिग में परमात्मा है और एक दिग में जीवात्मा है। पहले तो एक ही मुख बराबर था, और दोनों का मुख अलग हो गए। कौन? जीवात्मा मुख घुमा ली। घुमाने के कारण, भगवान से अलग होने के कारण, अलग दृष्टि होने के कारण माया के साथ बंधन होता है, और माया के साथ बंधन होने के कारण ये सारा समस्या, सारा घटना हो ही जाता है। जब भगवान के साथ मिल जाते हैं, भगवान के साथ फिर संबंध बन जाता है, तब उनको फिर आनंद जो है, आनंद उनको मिल। नारद जी बोले, हे राजन, मैंने तुम्हें ये जो पुरंजन और पुरंजनी कथा से
यही कहा है, केवल आध्यात्मिक ज्ञान जो है ना, आध्यात्मिक ज्ञानों का उपदेश दिया है। ना तो कोई पुरंजन, ना तो कोई पुरंजनी है, ना तो वैदर्भी, ना तो कोई मलयध्वज राजा है। ये तो हमारे आध्यात्मिक तत्व है, ये तो हमारे ही परिचय है। तुम इसको विचार करो, इसको तुम मनन करो। श्रवण करने से नहीं होंगे, अपना स्वरूप को विचार करो। ऐसे विचार करेंगे, ऐसे चिंतन करेंगे, इस तत्वों को चिंतन करते करते तुम्हारे भीतर सांसारिक क्लेश जो है, माया की बंधन जो है, ये सब निवृत्त हो जाएंगे, आपसे सब चले जाएंगे। और जिस दिन चले जाएंगे, आप परम शांति जो है, परम सुख जो है, उन शांति को आप प्राप्त होगी। देवर्षि नारद यही समझाते हैं। ये कथा का अध्याय का सार यही है। आज एकादशी तिथि है, आज एकादशी है, शयनी एकादशी। ये एकादशी की अनेक महिमा है। महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे प्रभु, आषाढ़ मास की जो शुक्ल पक्ष एकादशी जो है, उन एकादशी की नाम क्या है, महिमा क्या है, विधि क्या है, आप कृपा पूर्वक वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज, ये कथा मैं नहीं कहूंगा, स्वयं ब्रह्मा ने एक समय एकादशी का वृत्तांत तो देवर्षि नारद को सुनाई। इसी एकादशी का वृत्तांत, बस मैं वही कथा तुम्हारे सामने कीर्तन कर रहा हूं, तुम केवल ध्यान पूर्वक सुनो। ब्रह्मा ने देवर्षि नारद को ये शयनी एकादशी के बारे में क्या कहा। ब्रह्मा ने कहा, हे नारद, इसी संसार में अगर देखा जाए, एकादशी के समान, हरिवासर के समान कोई तिथि है नहीं। इसके बराबर कोई तिथि, कोई व्रत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। इनके समान इसलिए कोई पवित्र नहीं है। संसार में इसके समान कोई तुलना नहीं करे। इसलिए देखो, इस प्रकार ये पवित्र तिथि जो है, केवल पवित्र तिथि नहीं है, अनंतो जन्मों का आपका जो पाप जो है, पाप को नाश करेंगे। केवल पाप को ही नाश नहीं करेंगे, आपके मन में जो कामना है, सारे कामनाओं को प्रदान करेंगे। ये एकादशी तिथि, कोई भी एकादशी है, सभी एकादशियों में इस प्रकार शक्ति है। और आपको पाप नष्ट करेंगे तो आपको जमलोक में भी जाने का कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे भगवान के पास चले जाएंगे। और ये एकादशी है शयनी नाम से विख्यात। ब्रह्मा देवर्षि नारद से कहते हैं, देखिए, एकादशी करने का भक्तों का एक ही उद्देश्य है, ना तो हम पाप क्षय करने के लिए, ना तो हमको फल पाने के लिए, ना तो हमें और कोई भोगने के लिए। भक्तों जन जो एकादशी करते हैं, उद्देश्य है भक्ति, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को संतुष्टि करने के लिए। बाबा, भगवान प्रसन्न होने से आपको क्या दुर्लभ है? इसलिए भक्तों का सारे क्रियाएं जो है, सारे व्रत, जो दान ध्यान है, एकमात्र उद्देश्य है, वो उद्देश्य केवल भगवान को प्रसन्न करना है। महाराज, यही होना चाहिए। ब्रह्मा कहते हैं, नारद, इस विषय में तुम्हारे निकट में एक पौराणिक आख्यान जो है, वही कह रहा हूं, तुम ध्यान से सुनो। पौराणिक आख्यान ये है, प्राचीन काल में सूर्य वंश में मांधाता नामक एक राजर्षि थे, महान प्रतापी, सत्य प्रतिज्ञ। वो राजा इस प्रकार राज्य पालन करते थे, किसी के साथ कोई भेदभावना नहीं रखते, सबके ऊपर अत्यंत दया है, और सबको अपने प्रजा जैसा, अपने संतान जैसा है, ऐसा ही सबको पालन करते थे। और महाराज जी का जिस प्रकार धर्म आचरण है, धर्म साधन में लगे हुए हैं,
और उनके प्रभाव से संसार में कहीं पर ना तो कोई दुख है, ना तो कोई रोग है, ना तो कोई अनर्थ है, कोई है नहीं है, सभी प्रजा सुख पूर्वक उसमें रहने लगे। तो क्या कहे, इस प्रकार बीतने के बाद एक समय एक आश्चर्यमय घटना हुआ है। क्या हुआ है? दैव क्रम से उन्हीं के राज्य में 3 साल तक कोई वर्षा नहीं हुई, और जब वर्षा नहीं हुई, भूखमारी के कारण अन्नो हुआ नहीं है, अन्नों के अभाव से सभी लोग प्रजा अत्यंतो त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे। पूजा पाठ कैसे करेंगे अगर भूखा है? सारे प्रजा महाराज जी के पास चले जाते हैं और महाराज जी के पास जाकर के निवेदन करते हैं, महाराज आपको कुछ तो व्यवस्था करना ही पड़ेगा, आप हमारे रक्षक है, हम आपके प्रजा है, ये दुर्गति जो है, ये दुखों को आपको ही दूर करना है। महाराज जी ने चिंतन किया है, देखो मैंने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं है, मैंने ऐसा कोई पाप किया, पर राज्य में इस प्रकार अनर्थ जो है, इस प्रकार दुख होने का कारण क्या है? देखिए, राज्यों में 2 कारण में ही राज्य विनाश होते हैं, एक राजा के दोष और एक प्रजा के दोष। हो सकता है कोई प्रजा के दोष है, तो महाराज जी ने क्या किया है, इसी को जानने के लिए महाराज जी एक समय उन्होंने अपने सैन्यों के साथ घोड़े में चढ़ करके, रथ में चढ़ करके वन में चले जाते, और वन में चले जाकर के ऋषियों के आश्रम पूछते, कहाँ ऐसे महात्मा है, ऐसे कौन ऐसे सिद्ध पुरुष है जिनके पास चले जाने के बाद ये समाधान दूर हो जाए। ऐसे खोजते 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 उसी वन में ब्रह्मा के पुत्रों अत्यंत तेजशाली, अत्यंत शक्तिशाली अंगिरा नामक ऋषि का दर्शन हुआ, और जैसे दर्शन हुआ, मंधाता महाराज जाकर के चरणों में गिरते हैं, अपने सारे दुख का कारण निवेदन करते हैं। वो अंगिरा ऋषि ध्यान करके वही कहते हैं, महाराज आपके देश में ये अनर्थों का एक ही कारण है। देखिए, ये सत्ययुग है, ये सत्ययुग की घटना था। सत्ययुग में केवल ब्राह्मण लोग ही तप करते थे, सत्ययुग में केवल ब्राह्मणों का ही अधिकार था तप करने का। पर तुम्हारे देश में ऐसा एक प्रजा है जो शूद्र है, शूद्र होकर के घोर तप कर रहे हैं, इनके लिए तप करने का अधिकार नहीं है, ये अनधिकार का साधन कर रहा है, इसी कारण आपके राज्य में इस प्रकार अनर्थ हुआ है। तो महाराज जी ने कहा क्या करना चाहिए, अभी तप कर रहे हैं। अंगिरा ऋषि ने यही उपदेश किया, महाराज उन्हें वध कर दीजिए, झामला खत्म हो जाएंगे, आपका राज्य अमंगल दूर हो जाएंगे। महाराज जी भक्त है, भगवान के परम भजन कर रहे ज्ञानी है। महाराज जी ने, मानधाता ने हाथ जोड़ के कहा है, हे ऋषि वर, अरे बाबा, ये शूद्र हो, चंडाल हो, कोई भी निज जाति हो, भगवान के भजन में लगे हुए है, भगवान के तप में लगे हुए है, तो उनको मैं कैसा वध करूं? नहीं 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 नहीं, इस प्रकार पाप मैं नहीं करूंगा, आप कोई दूसरा उपाय बताइए इस अनर्थों से दूर होने के लिए, प्रजा के सुख के लिए। तब अंगिरा ऋषि बताते हैं और एक उपाय है। क्या उपाय है? ये आषाढ़ मास की शुक्ल पक्षीय जो शयनी एकादशी है, इन एकादशी को अगर आप विधि पूर्वक आप पालन करेंगे, एकादशी को आप धारण करेंगे, एकादशी के दिन जिस प्रकार करना चाहिए भगवान का पूजन पाजन, द्वादशी के दिन जिस प्रकार नियम के अनुसार व्रत खोलना चाहिए, आपको सब कुछ नियम से करना है। तो नियम से करने से, इस एकादशी की महिमा से, फल से आपके राज्य में जो कुछ है सारा अनर्थ दूर हो जाएंगे। महाराज जी ऋषि को प्रणाम करके चले आते हैं, अपने नगर में आकर के ये शयनी एकादशी करते हैं निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ। जिन निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ करने के बाद एकादशी फल से उनके राज्य में पहले जैसा था सुख शांति, उसी प्रकार सुख शांति आए, सारा दुख चले गए। ये एकादशी कथा कहाँ है? ये एकादशी कथा भविष्योत्तर पुराणों में एकादशी का वर्णन है। इस प्रकार आज शयनी एकादशी है,
शयन होता है भगवान का शयन 4 महीना तक। 4 महीनों में चातुर्मास जो है, इन 4 महीनों में आज भगवान शयन करते हैं। और जाकर के कब जागेंगे? कार्तिक महीने में जाकर के भगवान जागेंगे। ये भगवान का अलग लीला है, अनंत लीला, अनंत नाम है। आज भगवान के चरणों में, जगन्नाथ जी के चरणों में, गिरिराज जी के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। प्रभु कृपा करे, वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु पतितानां पावनं वैष्णवो नमः। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। अगर कोई भूल तो क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।